तो नहीं है किसी एमसीक्यूज में। वैसे सारा जो सेक्शन है ना ये सारे रिपीटेड एमसीक्यूज ही हैं। ठीक है, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। Contraction of valve will be seen on GBP wave form as V wave, C wave, X descent, P wave. इसका करेक्ट आंसर है C wave। ठीक है। False positive anti-sera D result from lab error, use of DAT, Rolex formation, none of the above. इसका आंसर क्या होगा? Rolex formation. Which structure is derived from neuroectoderm? Ciliary epithelium, corneal epithelium, trabecular meshwork, iris, superior rectus. Ciliary epithelium. Microscopic feature of polyarteritis nodosa is granuloma, fibrinoid necrosis, transmural inflammation, liquefactive necrosis. ठीक है। Estrogen and progesterone produced in the last 7 months by anterior pituitary, corpus luteum, hypothalamus, placenta, posterior pituitary. Descending thoracic aorta starts at cricoid cartilage C6, T2, T4, C7. Suspicion of pseudo-seizure is absent seizure, tonic-clonic seizure, partial seizure. Right limb paralysis is caused by left MCA, ACA, PCA, communicating artery. Right limb, lower limbs को कौन सप्लाई करती है? ACA। ठीक है। First pharyngeal arch derivative is styloid, stapedius, mandibular portion, head bone, cricoid. Right stereognosis is caused by lesion of which area of the brain? Thalamus, anterior part of frontal, right internal capsule, left internal capsule. राइट है तो लेफ्ट साइड का इंटरनल कैप्सूल होगा। पेशेंट ब्रॉट इन ईआर आफ्टर आरटीए ब्लड लॉस विल बी इनिशियली असेस्ड बाय पल्स रेट, बीपी, पैलर शिवरिंग, कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द पेशेंट। एस्ट्रोजन कॉजेज हेयर ऑन स्किन, डार्क स्किन, सॉफ्ट स्किन, डिक्रीज वस्कुलैरिटी। एस्ट्रोजन क्या कॉज करता है? सॉफ्ट स्किन। स्मॉल मसल ऑफ द हैंड स्प्लाइटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? C7, T1, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, C5। से कौन सप्लाई करती है? CA2, T1। Which after tonsillectomy patient develop hoarseness of voice due to damage of vagus nerve, glossopharyngeal, accessory nerve, maxillary nerve. Vagus. After what does HIV do after entering into the cell? Leave the cell immediately, copies its RNA to DNA, remain dormant for some time, activate T cells. ठीक है। Biocinosis is related to cotton industry, sugarcane, smoking, carbon particles. Most behavioral hormone in the man is estrogen, DHT, testosterone, cortisol. Hormone inhibiting the FSH inhibited by ovary, released by testes, corpus luteum, placenta. Drug that increases the blood pressure is phenoxybenzamine, alpha agonist, dibenzamine, beta blockers. ठीक है। Apoptosis is characterized by nucleus fragment, plasma membrane disruption, no host inflammation, adjacent inflammation. ठीक है। Technique used to detect the abnormality and microdeletion in chromosome is called PCR, microarray, cytogenic abnormality, FISH. Membranous glomerulonephritis associated with rheumatoid arthritis, SLE, selective proteinuria, hepatitis A. Membranous glomerulonephritis किस डिजीज के साथ एसोसिएटेड होती है? SLE के साथ। Biostat deal with presentation of the data, analysis and interpretation of data, data entry, none of the above. Analysis। अच्छा चलिए पेपर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट MCQ से ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ क्लीनिया सोडियम एंड शिस्टोसोमा इन्फेक्शन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्या करते हैं? प्राजिक्वांटल इज ग्रेटर देन नाइक्लोसामाइड। सेकंड इन G1 फेज क्या होता है? उसमें सेंट्रोसोम की डुप्लीकेशन हो जाती है। थर्ड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में हम क्या देते हैं? सेफ्ट्राइएक्सोन और क्लिथ्रोमाइसिन, इसका कॉम्बिनेशन देते हैं। फॉर प्रोपाइल थायराइड ड्रग्स विल हेल्प इन द हाइपरथायराइडिज्म, क्या करवाता है? ब्लॉक करता है सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेप पे उसे इनहिबिट करता है थायराइड को। 5 ट्रैवलर्स डायरिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटी डायरियल ड्रग्स। अब आप उसे क्या देंगे? नॉरफ्लॉक्सासिन।
Grade 4 hepatic encephalopathy occur due to which one of the following drug? Brufen, paracetamol, aspirin, diclofenac, meloxicam. सॉरी, ठीक है, पैरासीटामोल की वजह से। एस्पिरिन बेनिफिशियल इन हार्ट डिजीज किसको इनहिबिट करती है? थ्रोम्बोएक्सिन A2 को। सेरिबेलर ट्रैक का फंक्शन क्या होता है? ये स्मूथन्स एंड कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट को। बेसिकली जो सारा सेरिबेलम है वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा था? कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। 9 ए पेशेंट ब्लाइंड फोल्डेड आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन द हैंड विच एरिया असेसमेंट इज बीइंग डन। सोमास्थेटिक एसोसिएशन एरिया इज ग्रेटर देन प्राइमरी सोमास्थेटिक एरिया। आगे आप जाएंगे ना, मतलब आगे वाले पेपर्स में, तो अक्सर जगह के ऊपर इसका आंसर चेंज भी दिया हुआ है, ठीक है। 10 कहते हैं कि लेकिन यहाँ आपने इसका जो आंसर है यही करना है कि सोमास्थेटिक एसोसिएशन एरिया ही है। चार्ली इज ग्रेटर देन अल्फा। 10 कहते हैं ए पर्सन आफ्टर आरटीए विद डैमेज टू टेम्पोरल बोन विच आर्टरी इज इन्वॉल्व। तो टेम्पोरल बोन के पास से कौन सी आर्टरी पास करी होती है? इंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। 11 a patient has microtia and maldevelopment of external auditory canal is due to defect of, किस में डिफेक्ट आता है? फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेकियल आर्च में। डाउन सिंड्रोम का फीचर क्या होता है? इसमें नाम तो इसका डाउन है, लेकिन इसमें जो जीन है वो ओवर एक्सप्रेस कर जाती है, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन। 13 ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज बाय, इसके स्टिमुलस क्या होते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया, हेन निमोनिक याद है किसी को? हेन, HEN, H for hypoglycemia, E for exercise, N for non-REM sleep. 14. A person who is smoker and working in construction factory, जब भी कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री के अंदर जो स्मोकर होते हैं उसके अंदर लंग के अंदर जो लीजन होता है वो कौन कॉज करवाता है? एस्बेस्टोसिस। 15 ड्यूरिंग अपर लोब थायराइड सर्जरी नर्व लाइकली टू बी कौन सी इन्वॉल्व होती है? अपर लोब में एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, और लोअर लोब में कौन सी होती है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। 16 मसल यूज्ड इन क्वाइट इंस्पायरेशन में कौन से होते हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। 17 इन ए नॉर्मल पर्सन विच मसल इन्वॉल्व इन फोर्स्ड एक्सपायरेशन में कौन से होते हैं? इंटरनल इंटरकोस्टल, ठीक है। और नॉर्मली क्वाइट इंस्पायरेशन में कौन से होते हैं? डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। और फोर्स्ड इंस्पायरेशन में कौन से होते हैं? सारे आ जाएंगे, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, सीरेटस एंटीरियर वगैरह। क्वाइट एक्सपायरेशन में कौन से होते हैं? पैसिव एंड इलास्टिक रिक्वायर ऑफ द लंग्स। फोर्स्ड एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल और असेसरी मसल की जब बात की जाए तो एक्सटर्नल ओब्लिक जो कि एब्डोमेन का मसल होता है। 18-year-old girl died suddenly and unexpected, only headache, history 2 days back on autopsy, lymphocyte in myocardium। जब भी हार्ट की हिस्ट्री हो उसके अंदर पेशेंट को डेथ हो जाए तो उसमें कौन सा वायरस होता है जो मोर्टेलिटी कॉज करवाता है? कॉक्सिया बी वायरस। विच क्लेमिडियल स्पीशी कॉज ब्लाइंडनेस कौन सी करवाता है? ए एंड सी, ये क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड ब्लाइंडनेस कॉज करवाता है। डी एंड के क्या करवाता है? यूरिथ्राइटिस, pelvic inflammatory disease, ectopic pregnancy, neonatal pneumonia with eosinophilia और neonatal conjunctivitis, ये भी MCQs आता है। और जो टाइप L है वो क्या करवाता है? लिम्फोग्रेनुलोमा वेनरम, ठीक है। ये आपको सारी इसकी एग्जाम्पल आनी चाहिए। 20 नॉन डायबिटिक फीमेल अंडरगो बोन मैरो ट्रांसप्लांट आफ्टर 2 years having chronic rhinosinusitis develop fungal infection that show फंगल बॉल सेप्टेट हाइफी। अब आपने इसमें हाईलाइट क्या करना है? नॉन डायबिटिक एक तो उसने बता दिया, दूसरा सेप्टेट हाइफी किस में होती है? एस्परजिलस में। अगर डायबिटिक आ जाता और ए सेप्टेट हाइफी आ जाती देन आंसर विल बी, तब आपका आंसर क्या होना था? म्यूकोर, ठीक है। और अगर सूडो हाइफी आ जाती, सूडो हाइफी इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में, देन आंसर विल बी कैंडिडा। 21 इन द प्रेजेंस ऑफ एरियाज मैक्सिमम वाटर की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? पीसीटी में। टोटल बॉडी वाटर को कैलकुलेट कौन करता है? एंटीपायरीन। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को कौन करता है? मैनिटोल, इनोलिन एंड सल्फेट। प्लाज्मा को इवान, ब्लू एंड राइजा। 23 सीओपीडी का डायग्नोसिस क्या होता है? वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इक्वल होती है 0.1 के। इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम क्या कॉज करवाते हैं? सिस्टोलिक अरेस्ट। और हाइपर कैलीमिया क्या कॉज करवाती है? डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। 25 on ECG of a girl you saw टूथ वेव जब भी आए और 3:1 के साथ पी वेव आए तो आपने आंखें बंद करके क्या ऑप्शन चूज करना है? एट्रियल फ्लटर। मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड किसके अंदर प्रेजेंट होता है? वेन्स के अंदर। मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्रोनिक सर्कुलेशन हमें पता है कि लोकल मेटाबोलाइट्स एंड ऑक्सीजन डिमांड। 28 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकली मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा होता है? बेसल सेल कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन एम्ब्लियोब्लास्टोमा। 29
पेशेंट हैविंग फीवर कफ विद स्पूटम इन्फिल्ट्रेट ऑन एक्सरे चेस्ट ग्राम पॉजिटिव कैटलेज नेगेटिव। देखें ठीक है, ग्राम पॉजिटिव तो है लेकिन वो कैटलेज नेगेटिव है, तो कौन सा होता है? स्टेप नमूने। 30 प्रोटीन इन्वॉल्व ट्रांस माइग्रेशन में कौन सी होती है? पी कैम। ये एमसीक्यूज भी एग्जाम में आया था। पेन ऑफ पेरिकार्डाइटिस कौन सी नर्व कॉज करवाती है? फ्रेनिक नर्व। ड्यूरिंग द थोरेसिक सर्जिकल प्रोसीजर सर्जन शुड केयर द स्ट्रक्चर लाइगेटिंग द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। तो एक तो इस तरह एमसीक्यूज आता है कि स्टर्नम के पोस्टीरियरली कौन सी आर्टरी पास कर रही होती है? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। और उसके साथ कौन सी नर्व पास करती है? इप्सिलैटरल फ्रेनिक नर्व, जो डैमेज हो जाती है। इंसुलिन कॉजेज ग्लूकोज एंट्री किस तरह के सेल्स में एंट्री करवाती है? स्केलेटल मसल्स में। मायोटोम ऑफ द मसल्स कॉजिंग एक्सटेंशन ऑफ द नी। तो नी का डर्माटोम कौन सा होता है? अच्छा, एक्सटेंशन के डिफरेंट हैं और फ्लेक्शन के डिफरेंट हैं। ठीक है, अब ये एक्सटेंशन करवा रही है ना उसका जो मायोटोम है, तो एक्सटेंशन वाले कौन से हैं? L2 to L3। ठीक है, इनिशिएटर ऑफ और एंकल रिफ्लेक्स का कौन सा होता है मायोटोम? एंकल S1। इनिशिएटर ऑफ कार्डिक इम्पल्स कौन करवाता है? SA नोड इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होती है? लाडा। लाडा की ब्रांच कौन सी होती है? एंटीरियर डिसेंडिंग इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। 37 अथीरोमा के अंदर हमने क्या बात की थी फर्स्ट एड में? इसमें सारे सेल्स आ जाएंगे, मसल भी आ जाएंगे, सारा मैट्रिक्स भी आ जाएगा और लिपिड्स भी आ जाएंगे और ऑल टाइप ऑफ सेल्स आ जाएंगे। 38 न्यूप्लेसिया हैज पेरेंकाइमा एंड माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर क्या तीन चीज़ें होती हैं? स्ट्रोमा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड वेसल्स। 39 ए पेशेंट हैविंग हाइपोक्सिया द PO2 मेजरमेंट मेजर्ड इज 65 mmHg। तो जब भी ऑक्सीजन डिक्रीज हो रही हो तो इसका मतलब है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। 40 हार्ट इज शोइंग वाइट कलर का इन्फार्क्ट किस में आता है? आर्टीरियल ओक्लूजन के अंदर। ठीक है, हार्ट और किडनी में। और वीनस रेड इन्फार्क्ट क्यों आता है? वीनस ओक्लूजन की वजह से। और इसका निमोनिक क्या किया हुआ हमने? लेट या तिल। ठीक है, तिल कर लें। चलें, टेस्टिस, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड लीवर। 41 एड्रिनल मेडुला क्या से सिक्रेट करती है? एपिनेफ्रिन 80 के रेशियो और नोर एपिनेफ्रिन 20 के रेशियो से। हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया आप किस एग्जाम्पल में 39 में कह रहे हैं? अच्छा, मैं आपको कह रही हूँ कि जब भी उसने वहाँ दिया हुआ है ना कि जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, इसका मतलब है कि टिश्यू में ऑक्सीजन कम होने की वजह से हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है। तो उसका कौन सी टाइप होती है? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। अनीमिक हाइपोक्सिया तब होता है जब आपके पास मतलब HB कम है या उसकी ब्लड सेल्स कम है। ठीक है, इस तरह के सारे हमने एग्जाम्पल्स की हुई हैं पीछे। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया आपका 39? चलिए ठीक है। आपने हाँ, ये ऑक्सीजन के प्रेशर उन्होंने दिया हुआ है ना, क्योंकि नॉर्मली तो 100 पे होती है। अगर अब 65 पे यानी कि ड्रॉप कर रही है ना ऑक्सीजन, 80 60 से बिलो आ रही है उसकी सैचुरेशन, इसका मतलब है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया डेवलप हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं तो वो रेड ब्लड सेल टिश्यू के ऊपर क्या चीज़ ट्रांसफ़र करें? ठीक है, ऑक्सीजन जब है ही नहीं। अच्छा, 42 ए neutropenic hypotensive patient admitted in oncology ward with a history of dysuria, high grade fever. His blood culture yielded growth of P. aeruginosa। अच्छा, जब भी ये P. aeruginosa का इन्फेक्शन आता है, फीवर है, हाइपोटेंसिव है, ठीक है, तो इसमें कौन सा टॉक्सिन होता है? एंडोटॉक्सिन होता है ये। ठीक है, अच्छा यहाँ इन्होंने ऊपर लिखा भी हुआ है कि नॉर्मली वो सूडोमोनास का जो इन्फेक्शन होता है वो एक्सोटॉक्सिन होता है, लेकिन अगर सूडोमोनास के साथ फीवर आ जाए तो ये एंडोटॉक्सिन रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, और फीवर कैसे कॉज करवाते हैं? ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 1। लेकिन अगर सूडोमोनास के अलावा नॉर्मल फीवर होगा देन आप क्या चूज करेंगे? इंटरल्यूकिन 1 इज ग्रेटर देन ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। नेक्स्ट MCQ रिपीट है। आइज ओपन और क्लोज दोनों के अगर पेशेंट फॉल कर रहा है, फॉल की हिस्ट्री आ रही है, देन इट्स सेरिबेलम लीजन, अदरवाइज DCML आ जाएगा। 44 ए न्यूबॉर्न इज ब्रॉट विद लैम्ब्रोसैक्रल स्वेलिंग containing meninges without neural tissue। What is the most likely diagnosis of this swelling? क्या आएगा? स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजियोसिस। टी सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर विच डिजीज किसके लिए होते हैं? DM डायबिटीज मेलाइटिस के लिए। पेशेंट हैविंग डायरिया, डिमेंशिया और डर्माटाइटिस, ये 3Ds किस में आते हैं? नायासिन के अंदर आते हैं। 47 HIV पेशेंट हैज अल्सर इन द कोलोन। कौन कॉज करवाता है HIV को अंदर इन्फेक्शन? साइटोमेगालोवायरस से। क्या करवाता है? पोस्ट ट्रांसप्लांट के अंदर इन्फेक्शन होते हैं, कोरियोरेटिनाइटिस हो जाता है। ठीक है, 48 a lady visited Thailand and now came back to Pakistan presented with fever, chills, body aches, confusion and postural hypotension. What is the most probable cause? जब भी पेशेंट फीवर, चिल्स,
और इसके साथ और पोस्टल हाइपोटेंशन के साथ है तो डायरेक्ट डीडी में आपके क्या आ जाएगा, मलेरिया, क्योंकि ट्रैवल की हिस्ट्री है तो मलेरिया कंफर्म है। विटामिन सी की जो फंक्शन है क्या करवाते हैं, इसका मेटाबॉलिज्म में हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है प्रोलीन एंड लाइसिन के रेजिड्यू की। 50, हाँ जी, प्रोलीन और लाइसिन। 50 विच आयन इज रेज्ड इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में कैल्शियम। नेक्स्ट एमसीक्यू से पेशेंट आफ्टर स्लीप इन एन आर्म, मतलब सैटरडे नाइट पॉलिसी वाला आपको याद होगा ना, ठीक है। विच नर्व टेम्परेली इंजर्ड एंड कॉज रिस्ट ड्रॉप एंड लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ पोस्टीरियर आर्म, तो पोस्टीरियर आर्म को जो रिस्ट ड्रॉप है वो कौन सी करवाती है, रेडियल नर्व। प्लाज्मा प्रोटीन ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है, 25 mmHg। फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड मेटास्टेसिस किस ऑर्गन में चले जाते हैं, लंग्स के अंदर। मोस्ट कॉमन कार्डिक एनोमली टर्नर सिंड्रोम के साथ कौन सी आती है, हमने फर्स्ट एड की लाइन भी की थी, क्वार्केशन ऑफ एओर्टा के अंदर टर्नर सिंड्रोम एसोसिएशन में आती है। 55 बेस्ट ऑप्शन इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्नर सिंड्रोम में हम क्या करवाते हैं, कैरियोटाइपिंग करवाते हैं। 56 ए फीमेल विद 12 month एमेनोरिया प्रेजेंटेड विद फ्रीक्वेंट बर्निंग मिक्चुरेशन लो ग्रेड फीवर कॉजेज यूटीआई, तो बर्निंग मिक्चुरेशन में और फ्रीक्वेंटली आ रहा है ना, उसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है उसकी, तो डायग्नोसिस क्या होगा, यूटीआई डेवलप हो गया। 57 पेशेंट हैज सीएनएस सिम्टम्स एमेनोरिया, शी इज़ डायग्नोज्ड एज ए केस ऑफ प्रोलैक्टिनोमा, तो प्रोलैक्टिनोमा का जो सारा ट्यूमर है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऊपर मैस प्रेजेंट होता है ना, तो उसके नीचे वो किस चीज़ को, ऑप्टिक जो सारा ट्रैक है किस चीज़ को इफेक्ट कर रहा होता है, ऑप्टिक क्यास्मा को, और क्या कॉज कर देगा, बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया कॉज कर देगा। विच हेमियोनोपिया अकर हमने कर लिया कि बाइटेम्पोरल होता है। 59 लीजन इन द राइट ऑप्टिक ट्रैक, तो लेफ्ट साइड को होमोनिमस हेमियोनोपिया हो चुकी है, हमने कर लिया है। होम्योस्टेसिस के अंदर वर्ड गेन, गेन किस चीज़ के लिए होता है, एग्जैजुरेशन ऑफ द क्लॉटिंग मैकेनिज्म। सेंस विथ एवर्सिव कंडीशनिंग इज कौन सी होती है, एवर्सिव कहते हैं अनप्लेजेंट स्टिमुलस, जैसे आपने अक्सर कड़वा बादाम खा लेते हैं, कोई भी एक बिटर टेस्ट आपके माउथ के अंदर जाता है तो आपको एक आपके फॉरन फेस के एक्सप्रेशन जो है वो थोड़े से अजीब हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे कौन सी कहते हैं, एवर्सिव कंडीशनिंग, ठीक है, अनप्लेजेंट स्टिमुलस, तो वो कौन सा होता है, टेस्ट का होता है। 59 years old patient नॉन केस ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर प्रेजेंटेड विद अनीमिया, तो अनीमिया के अंदर अनीमिया कैसे डेवलप होता है, एरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी की वजह से। बीटा एड्रेनर्जिक कॉजेज, कौन सा इफेक्ट आता है, B1 रिसेप्टर्स हार्ट के ऊपर होते हैं, क्या कॉज करते हैं, कार्डिक एक्सेलरेशन, ये भी एग्जाम में आया था, एज इट इज़ आया हुआ था। माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर ECG के अंदर क्या आती है, पी माइट्रेल आपको नजर आएगा लीड 2 के अंदर। 65 भी हमने किया हुआ है कि अपेंडिसाइटिस के अंदर फ्लूइड कौन सा होता है, एक्सुडेटिव होता है। विच रिसीव इनपुट फ्रॉम हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, कौन सा होता है, अडीनो हाइपोफिसिस। नेक्स्ट MCQ भी हमने किया हुआ है कि जब भी एक पेशेंट डाउन स्टेयर्स आता है तो उसकी जो आई होती है वो डेविएट कर जाती है अपवर्ड एंड आउटवर्ड, क्यों, क्योंकि उसका सुपीरियर ओब्लिक डैमेज है। सुपीरियर ओब्लिक नॉर्मली इसकी मूवमेंट कहाँ होती है, हमने क्या किया था, इसका नॉर्मल इस कहाँ पे होती है इसकी, इन्फीरियर लैटरल, वेरी गुड। तो अब वो डैमेज हो गया तो आइज इन्फीरियर का ऑपोजिट अपवर्ड हो जाएगा और ये अपवर्ड एंड आउटवर्ड चली जाएगी, ठीक है। 68 पेशेंट हु इज शॉपकीपर सडनली कोलैप्स विद फाइन थ्रेड पल्स ऑफ 120 पर मिनट, BP उसका लोअर 80/60 विद ए पेल स्किन बिफोर कोलैप्स, पेशेंट एक्सपीरियंस सडन सेंट्रल चेस्ट पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन, कोलैप्स। अच्छा, जब भी सडन कोलैप्स की हिस्ट्री हो, एपिगैस्ट्रिक और चेस्ट पेन की हिस्ट्री हो तो उसका डायग्नोसिस क्या होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और ये डेथ भी कॉज करवा देता है। ट्राली कितने आवर्स में रिएक्शन होता है, 6 आवर में। एम्ब्रियोनिक काउंटर पार्ट ऑफ पैरामीजोनेफ्री डक्ट, ठीक है, वो क्या होती है, इजैकुलेटरी डक्ट। Which space is assessed after piercing the interlaminar ligament during LP? लंबर पंक्चर में इंटरलैमिनर लिगामेंट के बाद कौन सी स्पेस आती है, एपिड्यूरल स्पेस। ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर 2 ओवम है तो इसमें करेक्ट क्या आएगा, डिफरेंट कोरियोन आते हैं। मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में 2 क्या होता है, मीन मीडियन और मोड इक्वल आता है। मोस्ट पावरफुल रिफ्लेक्सेस ऑफ द हिप, कौन सा मसल होता है, इलियोसॉस। पैरामीडियल ट्रैक इन द वोलेंट्री मसल एक्शन विल एक्टिवेट, किस चीज़ को एक्टिवेट करवाता है, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को। बोन स्कैन इज डन फॉर विच ट्यूमर, किसके लिए करवाते हैं, रेटिनोब्लास्टोमा। और एक और कौन सा टेस्ट करवाते हैं, इसके 2 और टेस्ट के नेम बताएं जो हम, रेटिनो CS है, वेरी गुड, और एक और फर्स्ट एड की लाइन है, वो एक मार्कर टाइप हम यूज़ करते हैं, S से उसका नाम बनता है, याद आया किसी को, स्ट्रॉन्शियम 100। फर्स्ट एड में अगर आपने मस्कुलोस्केलेटन वाला किया हो या वैसे भी टेबल्स में लिखा हुआ है, S स्ट्रॉन्शियम 100, ठीक है। कार्सिनोमा विच फर्स्ट मेटास्टाइज टू द बोन, बोन में कौन सा चला जाता है,
प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा पीछे वर्टेब्रल कॉलम से सेपरेट करता हुआ लंग्स में आ जाता है। 78 एन IV drug abuser patient presented with productive cough lymph adenopathy for patient ATT was given but patient is not responding to the therapy causative agent for the symptom क्या होता है निमोसिस्टिक जीरोवर्साइट डेवलप हो जाता है। 79 ड्यूरिंग एक्सरसाइज कार्डिक आउटपुट, ठीक है, एक्सरसाइज के दौरान कार्डिक आउटपुट क्यों इंक्रीज होते हैं क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज करते हैं, उसका वर्कलोड इंक्रीज होता है तो कार्डिक आउटपुट भी इस तरह इंक्रीज हो जाती है। 80 फीमेल पेशेंट विद लिक्विड डिस्प्लेजिया ऑन बेरियम स्वेलो जब भी आ जाएगा तो आपका डायग्नोसिस क्या होगा एक्लेजिया। एक्लेजिया में क्या होता है न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन आ जाती है। ग्रेटर रिस्क ऑफ निमोथोरेक्स कब होती है जब आप CVP लाइन पास कर रहे होते हैं स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल के साथ से, कौन सी वेन डैमेज हो जाती है राइट सबक्लेवियन वेन। केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर कोआगुलेशन इन DIC में कौन सा होता है फिब्रिनोजन। इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कोआगुलेशन टू बिनाइन तो कौन सा होता है रफ एंडोथीलियम, ठीक है। 80 पेशेंट प्रेजेंटेड विद ब्रेथलेसनेस, pH उसकी 7.3 है, डिक्रीज है, कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड है, ऑक्सीजन 75 पे है, बाइकार्बोनेट्स डिक्रीज हैं तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। 85 नेक्स्ट में ABGs के अंदर pH डिक्रीज है, बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस का सिनेरियो है। 86 ए बॉय सस्टेन RTA आफ्टर ब्लड लॉस 1.5 लीटर अनीमिया, अगर 2 दिन के अंदर हिस्ट्री है ना उसके ब्लड लॉस के, आपने देखना है कि वो एक्यूट ब्लड लॉस है या क्रॉनिक ब्लड लॉस है। एक्यूट ब्लड लॉस में हम उसे क्या कहते हैं नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। 87 7 month प्रेगनेंट लेडी विद क्रॉनिक ITP हैविंग एक्मोसिस, अच्छा इसका अपने ये लोग ग्रुप में भी शायद कोई डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अच्छा आप देखेंगे ITP है उसे और वो प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, तो आप उसमें स्प्लीनेक्टमी तो नहीं कर सकते ना क्योंकि वो स्टीरॉयड की पहली डोज ऑलरेडी ले रही है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स, प्रेगनेंसी के बाद हम स्प्लीनेक्टमी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। 88 a patient presented with bilateral ptosis muscle wasting on mastication there is acetylcholine receptacle suitable तो कौन सा होता है myasthenia gravis। और अगर पोस्ट साइनेप्टिक हो देन लैम्बर्ट ईटन, इसमें कैल्शियम चैनल्स आ जाते हैं, ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है MCQs। 89 अंडर 2 ईयर बबिंस्की साइन इज नॉर्मल बट इट डिसअपियर आफ्टर 2 ईयर, ठीक है, तो इसका मतलब है क्योंकि 2 ईयर्स के बाद माइलिनेशन बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इन द कॉर्टिकल ट्रैक्ट डेवलप हो जाती है, माइलिनेशन डेवलप हो जाती है। 90 HIV पेशेंट प्रेजेंट विद फीवर नेक रिजिडिटी एंड मेनिंजियल इरिटेशन, HIV के पेशेंट के अंदर जो मेनिंजाइटिस है वो कौन डेवलप करते हैं क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस। ए पेशेंट विद HIV, हाँ जी, और इसकी ड्रग याद है किसी को कौन सी ड्रग देते हैं मेनिंजाइटिस में जो HIV के अंदर पेशेंट्स होते हैं क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस में, एम्फोटेरिसिन B, वेरी गुड। ए पेशेंट विद HIV द कंफर्मेटरी टेस्ट कौन से होते हैं वेस्टर्न ब्लॉट। पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन का क्या मतलब है पोस्ट साइनेप्टिक हाइपरपोलराइजेशन। इंटेस्टाइनल इन्फाक्शन ड्यू टू सुपीरियर मेसेंटेरिक अगर ब्लॉक हो जाए तो वो किसको स्पेयर कर देते हैं डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मॉइड कोलोन। लिवेटर इन आई की नर्व सप्लाई कौन सी होती है पुडेंडल नर्व। राइट लंग हैज ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। मिडल लोब के अंदर कौन कौन से सेगमेंट होते हैं मीडियल एंड लेटरल, 2 सेगमेंट्स होते हैं। होमोसेक्सुअल मेल HIV पॉजिटिव हैज फीवर ड्राई कफ फॉर वीक्स, एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरिया शो, कॉज क्या होगा MAVM इंट्रासेलुलर। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज इन PCT कौन करवा रहा है तो उसके अंदर रिसेप्टर्स कौन से होते हैं सोडियम पोटाशियम ATPase पंप का लेवल इंक्रीज हो जाता है। 98 7 years old boy presented with drowsiness, his urine osmolarity इंक्रीज हो गई है 600 पे आ गई है, यूरिया उसका 15 है, सोडियम हाइपोनेट्रीमिया हो गया है, ठीक है। तो इसमें कॉज बेसिकली क्या है SIADH, ठीक है। इसमें प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कैसी होगी ज़्यादा होगी या कम होगी डिक्रीज होगी, और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी यूरिन बहुत कंसनट्रेटेड होगा, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि वो वाटर को एक्सक्रीट ही नहीं करा, इसमें नेगेटिव वाटर स्टोरेज हो जाता है ना, ठीक है, नेगेटिव वाटर क्लियरेंस, इस तरह करके कोई MCQs आता है। 99 a young girl in supine position with BP 80/50 and pulse 100 when she stand her pulse rate increase to reason for this increase in pulse। अच्छा हमने बात की कि जब भी वो बैठी हुई है जब वो खड़े होते हैं तो क्या होता है वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाता है और हार्ट रेट जो है टेकिकार्डिया डेवलप हो जाता है, ठीक है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है लेकिन वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाता है हार्ट का।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल इंडिकेट द ओवुलेशन हैज अकर्ड। तो ओवुलेशन में 15 डेज पे क्या होता है, सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग हो जाती है विद नो फर्निंग। 101 पेशेंट ब्रॉट टू ईआर अनकॉन्शियस, देयर इज ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एम्प्टी बॉटल ऑफ एस्प्रिन। तो एस्प्रिन का एंटीडोट कौन सा है, बाइकार्बोनेट एडमिनिस्टर करेंगे। टाइट सेल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड का पैरेंकाइमा। तो एड्रिनल ग्लैंड का जो पैरेंकाइमा होता है वो कहाँ से डेराइव्ड होता है, मेसोथीलियम से। यंग मैन, ये भी हमने किया हुआ है कि सारा चेस्ट एक्सरे ईसीजी सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जो ज्वाइंट पे इशू था ना, तो उससे क्या डेवलप हो जाता है, कोस्टोकॉन्डल ज्वाइंट की वजह से उसे पेन हो रहा है, नॉन कार्डिक पेन। ठीक है, तो एटिपिकल चेस्ट पेन हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, बेसिकली कोस्टोकॉन्ड्राइटिस डेवलप हो जाती है, यानी कि इस ज्वाइंट की स्लाइटली इन्फ्लेमेशन की वजह से पेशेंट को एटिपिकल चेस्ट पेन होती है। 104 ए चाइल्ड हैड रिकरेंट इन्फेक्शन एंड एवरी टाइम क्लेब्सिया इज फाउंड, व्हाट इज द डायग्नोसिस, क्या होता है, क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज। 105 सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, वेंकोमाइसिन। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में मेट्रोनिडाजोल होगा तो आप उसको चूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा ये आपने देखना है कि माइल्ड में हम मेट्रोनिडाजोल देंगे, लेकिन अगर सवेयर आ जाएगा ना, सवेयर एंड रेजिस्टेंट, तब हम उसे वेंकोमाइसिन देंगे। 106 पाई का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो हम उसमें क्या देंगे ट्रीटमेंट, आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं। बेसल इलेक्ट्रिकल रिदम ऑफ गट, ये भी एमसीक्यूज आता है। कौन होता है, इन्फ्लक्स होती है सोडियम की और स्लो कैल्शियम एंड पोटाशियम एटीपीएस। 108 पेशेंट हैज रेस्पिरेटरी इलनेस ट्रीटेड विद एरिथ्रोमाइसिन, ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा। 109 राइट साइड का स्पाइनल कॉर्ड की हेमी सेक्शन होगी, तो क्या होगा, डिफेक्ट आएगा इप्सीलैटरल, सेम साइड पे बिलो द लेवल ऑफ द लीजन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन कहाँ डेवलप होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, और कॉन्ट्रालैटरल साइड के ऊपर क्या होता है, कौन सी दो सेंसेशन है जो लॉस हो जाती हैं, पेन एंड टेम्परेचर। वेरी गुड। 110 ए पर्सन वर्किंग इन सर्कस, ये हमने कल किया था कि फ्लेक्सिबल ज्वाइंट है, मीडियल नेक्रोसिस किस में होती है, मार्फन सिंड्रोम में, क्रोमोसोम नंबर 15, और प्रोटीन कौन सी होती है, फिब्रिलिन। 111 ए फीमेल हैज़ एक्टिव ब्लीड एंड प्लेटलेट्स 5000, वर्ड शुड बी नेक्स्ट ट्रीटमेंट। अब हम क्या देंगे, मेगा यूनिट्स ट्रांसफ्यूज करेंगे, 1 मेगा यूनिट ट्रांसफ्यूजन। 112 52 ईयर मैन विद लेटिक लीजन, जब भी लेटिक लीजन आते हैं तो आपका डायग्नोसिस क्या होता है, बोन, बैक पेन, वीकनेस, एप्पल ग्रीन बायोफ्रिंजेंस, कोंगो स्टेन। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसका डायग्नोसिस क्या बनेगा, मल्टीपल माइलोमा। वेरी गुड। इसमें हम क्या करवाते हैं, प्रोटीन इसमें रेज्ड होती है ना, और हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। चार्ली, इरिटेटिव इफेक्ट और नार्कोलेप्सी इज ड्यू टू लीजन, किस में आता है, हाइपोथैलेमस के अगर लीजन हो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अडीनोसिन सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में क्या करवाती है, एट्रियोवेंट्रिकुलर एवी पे, एवी बंडल ब्रांच का ब्लॉक करवा देती है, एवी ब्लॉक करवा देती है। ठीक है, यहाँ तक सारे एमसीक्यूज क्लियर हैं, रिवाइज कर लें इन्हें, आई थिंक ये इजी ही थे। नेक्स्ट पेपर के चेक करते हैं कितने हैं। अच्छा, जो पेपर नेक्स्ट 5 है ना, इसके भी ऑलमोस्ट 100 हैं, यानी कि कल जो मैंने आप लोगों से वाइवास लेंगे हम लोग। ठीक है, और 6 के कितने हैं, मतलब 100 है, तो आई थिंक हमारा जल्दी हो जाएगा। अब आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि जब अभी आई थिंक 3 या 4 डेज़ अभी हमें लगेंगे ना, और या हार्डली 3 डेज़ लगेंगे। ठीक है, तो तब अब अपना ज़्यादा फोकस जो है ना डबल ए के ऊपर, फर्स्ट एड पे, इन चीज़ों पे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एसके का आई थिंक इतना काम नहीं होता है जो बाकी। आज मैं करवा रही हूँ SK 1 to 17 सेक्शन 5। हम ऐसे करते हैं कि डेली एक जो इवन नंबर वाला पेपर होता है वो मैं डिस्कस करवाती हूँ, जो ऑड नंबर वाला पेपर होता है वो आप लोग खुद अपना सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करते हैं, और मैं क्लास के स्टार्ट में 5 मिनट्स में उसका वाइवा ले लेती हूँ। ठीक है, तो आज हम लोगों ने किया है SK 1 to 17 का सेक्शन 5 का पेपर 4। ठीक है, कल आप लोग 5 खुद प्रिपेयर करके आएंगे, और 6 इंशाल्लाह हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके साथ हम डेली डबल ए और फर्स्ट एड भी करते हैं, वो मैंने आपको ग्रुप में शेड्यूल शेयर किया है, वो आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज वाले रिवाइज करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्रेड 4 हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी अकर ड्यू टू विच ड्रग, ब्रूफिन, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, डिक्लोफैन, मेलोक्सिकैम। टोटल बॉडी वाटर इज कैलकुलेटेड बाय इनोलिन, एंटीपायरिन, इवान ब्लू, पीएच, राइजा। Drug of choice for tinea solium is praziquantel, niclosamide, metronidazole, ciprofloxacin.
Drug of choice for community-acquired pneumonia is cefotaxime, ceftriaxone plus clarithromycin sulfonamide. Adrenal medulla secrete hormone epinephrine और norepinephrine, epinephrine and cortisol, epinephrine या norepinephrine, और इनके रेशियो भी बताएं। कितने रेशियो से सिक्रेट होते हैं ये? 80 और 20. In COPD, diagnosis will be made. Ventilation perfusion ratio 0.1, 1 physiological dead space, shunt या infinite. Main determinant of coronary circulation is sympathetic, parasympathetic, local metabolites and oxygen demand, potassium ion, hydrogen ion. Maximum proportion of blood is present in aorta, arteries, arterioles, capillaries, venous system. Beta adrenergic causes which one of the following effect? Vasodilation, cardiac deceleration, vasoconstriction, cardiac acceleration. In mitral stenosis, ECG show P mitral in lead 2, lead 4, lead 1. Lead 2. T cell responsible for which disease? Diabetes type 1, 2, vasculitis. Patient having diarrhea, dementia due to deficiency of which vitamin? Thiamine, niacin, folic acid, riboflavin. Which receive input from hypophyseal portal system? Adenohypophysis, neurohypophysis, pares distalis, tuberculous, nervosa. ट्रॉली रिएक्शन कितने आवर्स के बाद होता है? 10, 8, 6 या 2? 6. Patient present with bilateral ptosis, muscle wasting on mastication. There is acetylcholine receptor. Suitable pathology is myasthenia gravis, Lambert-Eaton, GBS, polio. Basal electrical rhythm of gut is by influx of sodium and slow calcium sodium channel, या influx of sodium by slow calcium and potassium ATPase, या influx of chloride या influx of potassium, beta option. A patient with HIV, the confirmatory test will be Western blot, ELISA, CD4 count, PCR. Western blot. Levator ani is innervated by which one of the following? Pudendal nerve, obturator, sciatica, femoral and tibial. Pudendal. Right lung has bronchogenic carcinoma. Middle lobe is removed surgically. Section involved will be apical, lingular, medial and lateral, inferior basal, medial basal and lateral. Mechanism of action of adenosine in supraventricular tachycardia is block of SA node, AV block, increased sympathetic rate, parasympathetic block. Irritative effect on narcolepsy due to lesion in midbrain, thalamus, hypothalamus, cortex, basal ganglia. Female has active bleed and platelets 5000 mega MCL. What should be the next treatment? Immunoglobulins देंगे 1 mega unit transfusion, splenectomy, immunoglobulins. चलें, पेपर 5 आप लोगों ने 100 MCQs हैं वो आप लोगों ने कल कर लेना इंशाल्लाह, और फिर 6 हम क्लास में कर लेंगे, ठीक है? डबल ए क्लास कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट? रीनल है। अच्छा, रीनल ना बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है? तो आप लोगों ने रीनल ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें से बहुत MCQs आते हैं और डिफ़िकल्टी लेवल उनका वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? रीनल में इतना रट्टा नहीं है, कॉन्सेप्ट है। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उसके रीनल के MCQ सारे ठीक होंगे, अदरवाइज़ ये बहुत कंफ्यूज करते हैं पेपर में। 79 और इसके डबल ए के पल्स पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, आप बताएं कि हाइपर ऑस्मोटिक एंड डिहाइड्रेशन कंडीशन के अंदर एग्जांपल बताएं, कौन कौन सी एग्जांपल आ जाती है इसमें? हाइपर ऑस्मोटिक है और डिहाइड्रेशन है, किस कंडीशन में एक्से होगा? वेरी गुड, एक्सेसिव स्वेटिंग। और एक डिजीज़ का नाम बताएं। चलें ठीक है, मैं दोबारा आपको PDF शेयर कर दूंगी, ठीक है? हम लोग ऐसे करते हैं, उस वो PDF को देख के आपको डेली समझ आ जाएगा कि आपने क्या क्या टास्क करनी है, ठीक है? आज बस आप वैसे ही मतलब लेक्चर अटेंड कर लें और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी प्रिपेयर करना है मतलब लेक्चर के लिए, ठीक है? और कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे वैसे ही टेक्स्ट कर लीजिएगा, आपको समझा दूँगी। अच्छा, नेक्स्ट बताएं।
रेड ब्लड सेल्स का मेजर बफर कौन सा होता है? रेड ब्लड सेल्स का बफर हीमोग्लोबिन। और मेजर यूरिनरी बफर कौन सा होता है? मेजर यूरिनरी बफर अमोनिया, सॉरी। मेजर यूरिनरी बफर होता है अमोनिया। और मेजर रीनल बफर कौन सा होता है? मेजर रीनल बफर इट्स फॉस्फेट्स। अच्छा बताएं कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी के अंदर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को क्या होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को क्या होगा? एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड डिक्रीज होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को क्या होगा? इंक्रीज करेगा वो, ठीक है। ये वाला आपने बहुत अच्छे से कर लेना है, जो टेबल है ना, एबनॉर्मेलिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम रेगुलेशन, ये बहुत अच्छे से करना है आपने। अच्छा आप बताएंगे लूप डायूरेटिक किस तरह की मतलब एसिड बेस डिस्टर्बेंस में होते हैं? लूप डायूरेटिक्स, अगर पेशेंट लूप डायूरेटिक यूज़ कर रहा है तो उसमें एबीजीज के अंदर क्या वैल्यूज़ आएंगी? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, वेरी गुड। हाई आल्टीट्यूड के ऊपर क्या डेवलप हो जाता है? हाई आल्टीट्यूड, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, वेरी गुड, ठीक है। और अगर एक आइसोनियाजिड, कोई पेशेंट टीबी का पेशेंट है, वो आइसोनियाजिड यूज़ कर रहा है, कौन सा एबीसी इसके अंदर डिस्टर्बेंस आएगी? मेटाबॉलिक, कौन सी एनोइंग गैप के अंदर क्या आएगा? नॉर्मल होगा या इंक्रीज के अंदर आएगा या डिक्रीज में आएगा? इंक्रीज, इंक्रीज एनोइंग गैप विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर एक पेशेंट सीडेटिव ड्रग्स ले रहा है या ओपियोइड्स ले रहा है, देन सीडेटिव ड्रग्स की वजह से कौन सी डिस्टर्बेंस आएगी? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, वेरी गुड। अगर एक पेशेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कौन सी डिस्टर्बेंस होगी? ठीक है। और प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी में कौन सी होगी? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। कौन सी एक ऐसी कंडीशन बताएं जो थर्स्ट सेंटर को डिक्रीज करवा देती है, थर्स्ट को डिक्रीज करवाती है? SIADH या फिर, अच्छा, थर्ड सेंटर को डिक्रीज करवाने के लिए वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज है तो थर्ड सेंटर एक्टिवेट होगा। थर्ड सेंटर इनहिबिट कब होता है? SIADH के अंदर या BP रेज जब होता है, ठीक है। अच्छा अब आप बताएं कि एरिथ्रोपोइटिन को कौन सिक्रीट करता है? एरिथ्रोपोइटिन इज सिक्रेटेड बाय पेरीट्यूबुलर कैपिलरी सेल ग्रेटर देन मेसेंजियल सेल्स। अच्छा अब आप लोग बताएंगे मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस ऑफ आल्डोस्टेरोन इज, सीक्वेंस वाइज बताना है, खाली आपने पोटेशियम नहीं बताना। मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस ऑफ आल्डोस्टेरोन इज हाइपरकैलेमिया इज ग्रेटर देन रेनिन। सोडियम की एक्सक्रीशन नेट्यूरेसिस कौन सा हार्मोन करवाता है? नेट्यूरेसिस, ANP। हाइपर मैग्नीसीमिया क्या कॉज करवाता है? हाइपर मैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया आगे क्या इफेक्ट कॉज करवाता है नर्व के ऊपर? हाइपरकैल्सीमिया एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज करवाएगा या डिक्रीज करवाएगा? हाइपर जो है वो एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज करवाता है, ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज करवाएगा, हाइपोकैल्सीमिया एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज करवाएगा, ठीक है। फेनकनी सिंड्रोम के अंदर हाइपो बोला है मैंने, अच्छा सॉरी, अच्छा चलो ठीक है, आप लोगों ने ना इतना याद रख लेना कि हाइपोकैल्सीमिया के अंदर एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज होती है और हाइपर कैल्सीमिया में एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। अच्छा अब आप लोग बताएं कि हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया के अंदर एक्शन पोटेंशियल पे क्या डिफरेंस आता है? हाइपरनेट्रीमिया,
जब सोडियम ज़्यादा होता है। इंक्रीज हाइट होगी, ठीक है, उसकी जो स्लोप होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू एसिडोसिस, बॉडी एसिडोसिस की कंडीशन में किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। हाँ, इंक्रीज रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग बताएं फेंकने सिंड्रोम नेफ्रॉन की किस पार्ट को इफेक्ट कर रही होती है। पीसीटी को। और बार्टर सिंड्रोम किसको इफेक्ट करती है, किस पार्ट को। हाँ, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग बताएं कि एडीएच को इनहिबिट कौन सी चीज़ कर रही होती है। एडीएच इज इनहिबिटेड बाय अल्कोहल, उसको रेगुलेट कौन करता है। एडीएच को, एडीएच इज रेगुलेटेड बाय, एडीएच इज रेगुलेटेड बाय प्लाज्मा वॉल्यूम एंड यूरिन ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, सीरम ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन किन दो लेवल्स पे होती है नेफ्रॉन में, बाइकार्बोनेट्स की एब्जॉर्प्शन। पीसीटी एंड सीडी, ठीक है। क्रिसेंट्स आर फॉर्म्ड बाय विच सेल्स, क्रिसेंट्स को कौन बनाता है। पेराइटल सेल्स, या इसके साथ अक्सर ऑप्शन में आता है न्यूट्रोफिल्स का भी, ठीक है। चलें, आई थिंक ये वाली डबल एस हमने रिवाइज कर लिया, फर्स्ट एड से कर लेते हैं। हाँ जी, पीसीटी और सीडी ही आई थिंक, कलेक्टिंग डक्ट। मैं दोबारा कंफर्म कर देती हूँ आपको। सी डी है, ठीक है, पीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, मुझे 1 मिनट दे, मैं अब फर्स्ट एड लेके आती हूँ, ठीक है, फिर हम उसका रिवाइज कर लेते हैं।
अच्छा चलिए रीनल का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा बताएंगे हॉर्स शू किडनी जो है उसे कौन सी चीज़ की एबनॉर्मेलिटी हो जाती है जिसकी वजह से हॉर्स शू किडनी बनती है? इंफीरियर पोल ऑफ बोथ किडनीज फ्यूज एबनॉर्मली क्यों हो रही होती है? इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। अच्छा अगर मेम्ब्रेन रेमिनेट हो जाए इन द पोस्टीरियर यूरिथ्रा इन द मेल्स, डायग्नोसिस विल बी, क्या डिफेक्ट आएगा? यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही होती है ना सारी फिर, तो इसमें कौन सी डिजीज़ के अंदर ऐसे होता है? अगर मेम्ब्रेनस रेमिनेंट आ जाएं पोस्टीरियर यूरिथ्रा इन मेल्स के अंदर जो यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? अच्छा ऑप्शन देती हूँ मैं आपको, यूनिलैटरल रीनल एजेनेसिस, मल्टीसिस्टिक डिस्प्लेसिया, पोर्टर सीक्वेंस पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व या डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम। पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व्स, वेरी गुड। और इसके साथ एसोसिएशन किसकी आती है? हाइड्रोनेफ्रोसिस की और ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की और ओलाइगोहाइड्रोएमनियोज, ठीक है। ये आपने तीनों इसको हाईलाइट करने हैं। अच्छा आपने डायग्नोस बनाना है इसका, ट्विस्टेड स्किन, ट्विस्टेड फेस, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, ओलाइगोहाइड्रोएमनियोज, रीनल फेलियर, पोर्टर सीक्वेंस, वेरी गुड। अच्छा अब आप बताएंगे यूरिटेरिक बड कहाँ से डेराइव्ड होती है? यूरिटेरिक बड, ऑप्शंस दूं इसके? अच्छा ये डेवलप होती है मेटानेफ्रिक मीजेनकाइम से, ठीक है। यूरिटेरिक बड कहाँ से डिराइव्ड होती है? मेटानेफ्रिक मीजेनकाइम से या मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा से, ठीक है। अच्छा अब आप बताएंगे वोल्फियन डक्ट कहाँ से डिराइव्ड होती है? वोल्फियन डक्ट प्रोनेफ्रोज से, मीजोनेफ्रोज से या मेटानेफ्रोज से? वोल्फियन डक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोनेफ्रोज। अच्छा अब क्या चाहते हैं? अच्छा आप बताएं कि रीनल कॉलम को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? मैंने कल आपको कहा था कि ये वाली जो आर्टरी है ना, अच्छा इसकी मैं आपको ना एक क्लियर पिक्चर भी सेंड कर दूंगी, मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थोड़े से, ठीक है। इंटरलोबर आर्टरी, ठीक है। बेस ऑफ पायरामिड इज सप्लाइड बाय विच आर्टरी? बेस ऑफ पायरामिड को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? आर्कुएट आर्टरी। ग्लोमेरुलस और कैप्सूल हमने बात की थी कि बहुत जी और सी थोड़ा लंबा सा अल्फ़ाबेट होता है ना, इसे कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी? घूम के आएगी ना वो, इंटरलोब्यूलर आर्टरी, ठीक है। हाइलम को कौन सप्लाई करती है? हाइलम इज सप्लाइड बाय सेगमेंटल आर्टरी। अच्छा यूरेटर की ब्लड सप्लाई बताएं कि इसके अपर पार्ट को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है? यूरेटर की। प्रॉक्सिमल पार्ट को कौन सप्लाई करता है? यूरेटर के। ऑप्शंस देती हूँ मैं, इंटरनल आइलिक, एओर्टा, गोनेडल आर्टरी, रीनल आर्टरी। ब्लड सप्लाई टू द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेटर को कौन सप्लाई करती है? रीनल आर्टरी, ठीक है। अच्छा जो मिडल आर्टरी है, गोनेडल आर्टरी है, एओर्टा, कॉमन एंड इंटरनल आइलिक, ये किसको सप्लाई करती है? उसके मिडल पार्ट को। और डिस्टल पार्ट को कौन सप्लाई करती है? इंटरनल आइलिक एंड सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, ठीक है। ये आपने अच्छे से करना है। अच्छा इसके बाद आप बताएं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को कौन सी कोलेजन बनाती है? 1 2 3 4। टाइप 4, ठीक है। अच्छा अब मैं आप ना मुझे बताना है कि ग्लोमेरुलस के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। जीएफआर डिक्रीज हो रहा है, रीनल प्लाज्मा फ्लो भी डिक्रीज हो रहा है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पे कोई चेंज नहीं आ रहा। क्या होगा? एफरेंट आर्टीरियल की कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, डायलेशन होगी, या कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ यूरेटर होगा, या डिहाइड्रेशन होगी? जीएफआर भी कम है, रीनल प्लाज्मा फ्लो भी कम है, और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आया। वेरी गुड, रीनल आर्ट्रियोल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। अच्छा अगर जीएफआर भी डिक्रीज हो जाए, रीनल प्लाज्मा फ्लो भी डिक्रीज हो जाए और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाए, देन सेम ऑप्शंस हैं। देखें दोनों चीज़ें कम हो रही है, इसका मतलब है डिहाइड्रेशन है, पीछे से ही आर्टरीज के अंदर ब्लड नहीं आ रहा, ठीक है।
अच्छा मुझे रीनल क्लियरेंस का फॉर्मूला बताएं। रीनल क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या है? UV/P, वेरी गुड। अच्छा ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना पेज नंबर 600 पे, तो ये आपने बहुत अच्छे से करना है, इससे आपके एग्जाम में ना 1-2 MCQ सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना KF ब्रैकेट में, फिर प्रेशर है ग्लोमेरुलस का, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन का, ठीक है, ये अच्छे से आपने कर लेना है। अच्छा इसके बाद आप बताएं कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को डिफाइन करें या फॉर्मूला बताएं कैसे हो। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन GFR डिवाइडेड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो, और ये नॉर्मली कितना होता है, कितने % होता है नॉर्मली? 20%। अच्छा फिल्ट्रेशन लोड का फॉर्मूला बताएं, फिल्टर लोड का फॉर्मूला। फिल्टर लोड GFR मल्टीप्लाइड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड सेगमेंट या हाइपोटोनिक सेगमेंट नेफ्रॉन के अंदर कौन सा सेगमेंट होता है, कौन सा पार्ट होता है जहाँ यूरिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होता है और हाइपोटोनिक? IDDCT, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। इम्परमिएबल टू सोडियम और बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक कौन सा पार्ट होता है? थिन लूप ऑफ हेनले, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अब आप बताएं मेटाबॉलिक एसिडोसिस और PCT के अंदर कौन सा डिफेक्ट आता है जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस डिवेलप हो जाती है, हाइपोकैलीमिया एंड हाइपोफॉस्फेटेमिया डिवेलप हो जाता है, विटामिन D की डेफिशिएंसी हो जाती है। PCT के अंदर नेफ्रॉन के अंदर रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट, फेनकनी सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताएं कि गिटलमैन सिंड्रोम के अंदर क्या क्या 3 चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा जब भी आप इसका पेशेंट देखेंगे ना, ये वाले जो बार्टर है और गिटलमैन है, इसमें जब आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे ना तो वो आपको डिक्रीज़ मिलेंगे, इससे आप डायग्नोज कर लेंगे। जैसा ICU के अंदर या जो डायलिसिस होते हैं ना जो बच्चों का, उसके अंदर ये आपको इस तरह के पेशेंट मिलेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब आप इनका सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मार्कली डिक्रीज इलेक्ट्रोलाइट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अच्छा अब आप लोग बताएंगे गिटलमैन सिंड्रोम के अंदर कौन सी इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस आती है? हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया एंड हाइपोकैल्सीयूरिया, तीनों आ जाएंगे, ठीक है। तीनों पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम तीनों डिक्रीज हो जाएंगे। और इसमें डिफेक्ट कौन सा आता है? ABGs के अंदर डिफेक्ट कौन सा आता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस? अल्कलोसिस, ठीक है। और ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती है या डोमिनेंट होती है? रिसेसिव होती है। और ये कौन सी डिजीज, कौन सी ऐसी ड्रग है जो ये खाने से हो रही होती है? थायाजाइड डायूरेटिक्स, ठीक है। लूप डायूरेटिक किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? बार्टर के साथ। थायाजाइड क्योंकि DCT पे एक्ट करते हैं तो इसके साथ गिटलमैन आ जाएगा, ठीक है। लूप ऑफ हेनले पे, वो तो लूप डायूरेटिक तो लूप ऑफ हेनले पे होंगे ना, तो वो बार्टर में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बार्टर के अंदर बताएं कि कौन सी 2 एबनॉर्मेलिटी होती हैं पोटाशियम की और कैल्शियम की बार्टर सिंड्रोम के अंदर? पोटाशियम को हाइपर कैल्सीयूरिया एंड हाइपोकैलीमिया विद मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि एक ऐसी रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट बताएं जिसमें हाइपोकैलीमिया हो रहा है, हाइपर टेंशन हो रही है, सीरम अल्डोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो रहा है और पेशेंट की हिस्ट्री है कि वो लिकोराइस खाता था। तो इसका डायग्नोसिस क्या बनेगा? लिकोराइस की हिस्ट्री के साथ सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरलोकोर्टिकॉइड एक्सेस, ठीक है।
अच्छा, लीडल के अंदर भी ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन उसमें लिकोराइस की हिस्ट्री नहीं आएगी। जब वो बात करें लिकोराइस की हिस्ट्री के साथ, तो आपका डायग्नोसिस क्या होगा? सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरलोकोर्टिकॉइड एक्सेस। इसमें हेरिडिटी 11 बीटा HSG डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, और कोर्टिसोल ज़्यादा हो जाते हैं, मिनरलोकोर्टिकॉइड भी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, बताएंगे लीडल सिंड्रोम के अंदर किस चैनल के ऊपर डिफेक्ट आता है लीडल सिंड्रोम में? बस आपने पूरा प्रॉपरली बताना है। इसमें क्या होता है? इनएक्ट चैनल्स जो हैं या सोडियम चैनल की डिग्रेडेशन हो जाती है, और इनएक्ट चैनल्स की गेन ऑफ फंक्शन हो जाती है, और आल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी। इसमें ओवरऑल सीरम आल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगी, ऑटोसोमल डोमिनेंट के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, आप लोग बताएं कि नेट्रीयूरिसिस को कौन से 2 हार्मोन करवा रहे होते हैं? नेट्रीयूरिसिस, प्रोमोट नेट्रीयूरिसिस, ठीक है। अच्छा, ये आपको पेज ये वाला क्लियर है ना? पेज नंबर 606 जो सारा रैस मैकेनिज्म है, रैस मैकेनिज्म सबको क्लियर है ना ये वाला? इसमें से बहुत एमसीक्यूज आते हैं। ये पेज, एक ये वाला पेज 606 आपने बहुत अच्छे से करना है, 604 आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, और 603 तो आप लोग मतलब इसे अपनी जितनी दफ़ा रिवाइज कर सकते हैं ना आप करें, ठीक है। रीनल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, प्रोस्टाग्लैंडिन रीनल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवाते हैं या डिक्रीज करवाते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक, चलिए मैं आपसे पहले क्वेश्चन करती हूँ, फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट बताती हूँ। एसिडोसिस डिवेलप हो गई है तो हाइपरकैलेमिया होगा या हाइपोकैलेमिया? एसिडोसिस, हाइपरकैलेमिया। इंसुलिन अगर एक पेशेंट ले रहा है तो उसका पोटाशियम लेवल ज़्यादा होगा या कम होगा? हाइपो होगा। अल्कलोसिस, अच्छा ये भी हमने कर लिया है। डाइजॉक्सिन की वजह से हाइपरकैलेमिया होगा या हाइपोकैलेमिया होगा? हाइपर, क्योंकि उसने सोडियम पोटाशियम एटीपीएस को ब्लॉक कर दिया है। अगर एक पेशेंट बीटा ब्लॉकर्स ले रहा है, हाइपरकैलेमिया होगा या हाइपोकैलेमिया? बीटा ब्लॉकर से हाइपर। अच्छा, ये वाला जो टेबल है ना, ये है पेज नंबर 606 पे, 608 पे। ये वाला आपने टेबल बहुत अच्छे से कर लेना है, और इसके जो ऊपर डायग्राम बनी हुई ना, इसमें से भी आपने हाईलाइट कर लेना क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप बताएंगे, अच्छा जो नेक्स्ट वाला पेज है ना 609, इस पर भी आपने ना ये चीज़ें अच्छे से कर लेनी है, जो एसिड बेस्ड फिजियोलॉजी है, और जो ये हेंडरसन हैसलबैक की इक्वेशन दी हुई है ना, ये भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप बताएं कि एक पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है टेटनी के साथ, टोर्साडोज डिपॉइंटिस के साथ, हाइपोकैलेमिया के साथ, हाइपोकैल्सीमिया के साथ, कौन से इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी है? सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम फॉस्फेट। वेरी गुड, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। अगर एक पेशेंट प्रेजेंट करता है रीनल स्टोन के साथ, बोन पेन के साथ, ग्रायोन्स के साथ, थ्रोन के साथ, साइकेट्रिक ओवरटोन के साथ, इट्स कैल्शियम ओवर, सीरम के अंदर हाइपर कैल्सीमिया है, इसका मतलब है, ठीक है। अगर एक पेशेंट को नोजिया, मैलेज, स्टूपर, कोमा एंड सीजर डिवेलप है, देन इट्स डेफिशिएंसी ऑफ विच इलेक्ट्रोलाइट? सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम फॉस्फेट। हाइपोनेट्रीमिया, वेरी गुड। अगर एक पेशेंट प्रेजेंट करता है रीनल स्टोन के साथ, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन के साथ, हाइपोकैल्सीमिया के साथ, देन इट्स, कौन से इलेक्ट्रोलाइट की डिस्टर्बेंस होती है? ये ज़्यादा है कोई? सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फॉस्फेट? फॉस्फेट, फॉस्फेट ज़्यादा होता है तो, ठीक है। हाइपर फॉस्फेटीमिया, हाइपर, क्योंकि अगर फॉस्फेट और कैल्शियम ऑपोजिट होते हैं ना, अगर कैल्शियम लो है इसका मतलब है फॉस्फेट ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि फेनकिनेस सिंड्रोम के अंदर कौन से रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस आती है? 1 2 3 4? 3 तो होती नहीं है, 1 2 या 4? 2। अच्छा, अब आप बताएं कि डायबिटिक के अंदर कौन सी होती है डायबिटिक पेशेंट्स में? 1 2 या 4? 4।
अगर एक पेशेंट बहुत ज़्यादा एनाल्जेसिया यूज़ कर रहा है, उसे एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी होगी, तो उसके साथ कौन सी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होगी? टाइप 1। किडनी स्टोन के पेशेंट्स को कौन सी होती है? 1 2 4 1। ठीक है, चलिए आई थिंक यहाँ पे फिजियोलॉजी हमारी एंड होती है। ये जो पेज 610 है ना, एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस वाला, ये भी आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल इसकी क्वेश्चन सुन लिए थे मैंने आपसे, इसलिए मैंने इससे क्वेश्चन नहीं किया आपको। ठीक है, रीनल फिजियोलॉजी यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीनल वाला, इसकी कोशिश करें। ये डॉक्टर नाइला आप क्या पूछ रही हैं, मुझे थोड़ा क्लियर कर दें। 4th एडिशन नहीं, मेरा फर्स्ट एड का आई थिंक 2024 वाला है मेरा एडिशन, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। एक मिनट मैं चेक करती हूँ। एडिशन इसके ऊपर आई थिंक नहीं लिखा हुआ, ये 2024 वाला है मेरा USMLE स्टेप 1 जो है फर्स्ट एड की। ठीक है, और AA का भी मेरा आई थिंक 3rd एडिशन है, 4th नहीं है। ठीक है, अच्छा, और कल आप लोगों ने इसके, अच्छा रीनल पैथोलॉजी से ज़्यादा ना इसकी फिजियोलॉजी में से MCQs आते हैं। पैथोलॉजी तो आपको पता है नेफ्रिटिक नेफ्रोटिक सिंपल सी हैं। ठीक है, और कोशिश करें अगर आपके पास कल टाइम मिलता है ना, तो आप इसके AA के भी फिजियोलॉजी के MCQs लाजमी करें। जो AA के फिजियोलॉजी के MCQs है ना, वो एटलीस्ट आप लाजमी करें। ठीक है, जो थोड़े थोड़े MCQs होते हैं AA के फिजियोलॉजी वाले, वो आप कोशिश करें करते जाएँ। ठीक है, चलें, और कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी को? बस क्लास एंड करें, चले ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और 5 वाला पेपर आप सबने कल कर लेना है, और 6 वाला हम अब क्लास में कर लेंगे। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।